Hello students, in our previous lecture we studied about forms of energy, different forms of energy and types of collision. So today we will start from elastic collision in one dimension. जो types of collision है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 3 types of collision होते हैं, that is elastic, inelastic and perfectly inelastic. So elastic collision in one dimension में हम क्या करेंगे, velocities of bodies after collision find out करेंगे. So first of all you will have to write the definition of collision. ठीक है, elastic collision क्या definition थी आपके पास इसकी? In which both the momentum and kinetic energy is conserved and colliding bodies continue to move along the straight line after collision. ठीक है, kinetic energy and momentum is conserved. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इट्स डेरिवेशन. तो उसमें हमने क्या करना है, पहले तो हमने कंसीडर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, दैट इज ए एंड बी. ठीक है, दोज आर इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. बॉडीज का मास क्या कंसीडर कर लेते हैं, m1 एंड m2. ठीक है, both are moving along a straight line with velocities u1 and u2. Okay, so first we have body A of mass m1, then we have body B of mass m2 moving with velocities u1 and u2. ठीक है, after collision, suppose that two bodies collide with each other, A and B. ठीक है, after colliding they get separated and move with different velocities, that is v1 and v2, A and B, m1 and m2, m1 and m2. Here it is before collision. ठीक है, this is during collision and this one is after collision. तो हमने दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए हैं, A and B of masses m1 and m2. Both are moving with velocities u1 and u2 before collision. After colliding, they move along that straight line only जिसमें वो पहले चल रहे थे, and get separated with velocities v1 and v2. ठीक है, as in elastic collision we know kinetic energy and momentum is conserved. ठीक है, तो first of all we will take momentum conservation. So in that momentum is given by P is equal to mv na, momentum is equal to mass into velocities. So momentum before collision will be m1 u1 plus m2 u2, and momentum after collision will be m1 v1 plus m2 v2. So mark it equation 1. Now another one we have is kinetic energy is conserved. So kinetic energy of an object is given by half of mv square. ठीक है, so for bodies of masses m1 and m2 and moving with velocities v1 and v2, the kinetic energies will be given by half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square is equal to. अब देखिए, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटीज लेनी है u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर हाफ ऑफ m1 v1 square plus half of m2 v2 square. Mark it equation 2. So we had momentum conservation and kinetic energy conservation. ठीक है, अब नाउ हम फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 लेंगे और हम इसमें से सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स, दैट इज विद मासेस m1 एक तरफ कर लेते हैं और जो मासेस m2 है वो दूसरी तरफ. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू
m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, m1u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस u2। सिंपल। ये था आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ वी विल हैव फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी से लिया जाए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से लिया जाए, हम इसमें भी क्या करेंगे, m1 वाले मासेस एक तरफ कर लेते हैं और m2 वाले मासेस एक तरफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाफ है बोथ साइड्स का वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ कॉमन आ जाएगा इधर से भी और इधर से भी, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन द ब्रैकेट वी विल हैव m1u1 स्क्वायर माइनस m2, सॉरी हमें मासेस m1 वाला लेना है ना, m1v1 स्क्वायर। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगा m2v2 स्क्वायर माइनस m2u2 स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, अब इधर जो है आपके पास इसे इक्वेशन 3 लेबल कर रहे हैं और इसे इक्वेशन 4 फ्रॉम, अब इधर हमारे पास क्या है, m1u1 स्क्वायर माइनस m1 बाहर कर लेते हैं, m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। मार्केट इक्वेशन 4। ठीक है, नाउ देखो ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है ना, सिर्फ इसमें इधर वेलोसिटीज में क्या है, अंदर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 3। सो व्हाट वी विल हैव हियर, m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, m1u1 माइनस v1 अपॉन m2v2 माइनस u2। दैट्स इट। सो हियर m1 get cancel out and m2 also get cancelled out. Here we will use identity a square minus b square that is equal to a minus b into a plus b. Here also a minus b into a plus b. Simple. In denominator there will be same, denominator change नहीं होगा, v2 minus u2। ठीक है, u2, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। वी विल हैव हियर u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। सो अगर हम इनिशियल वेलोसिटीज को एक तरफ कर दे, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। अब इधर जो u1 माइनस u2 है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब कि जो दो बॉडीज जिस वेलोसिटी से आपस में टकरा रही हैं। ठीक है, दो वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटीज के डिफरेंस को, दो बॉडीज के इनिशियल वेलोसिटीज के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। And difference in final velocities of two bodies is called relative velocity of separation. Relative velocity of separation, मतलब कि किस वेलोसिटी से बॉडीज अप्रोच कर रही हैं और किस वेलोसिटी से बॉडी अलग हो रही हैं, वो दोनों वेलोसिटीज क्या होती हैं आपकी, इक्वल। उन दोनों वेलोसिटीज का
सॉरी डिफरेंस क्या होता है, इक्वल। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी एंड हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज, दैट इज v1 एंड v2। हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। So we have u1 minus u2 is equal to v2 minus v1. To find the velocity of body A after collision, ठीक है। To find the velocity of body A after collision हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। कैसे देखते हैं। To find velocity of A after collision, that is v2। सिंपल वो वेलोसिटी क्या आपके पास v2, तो हम उसे सेपरेट आउट कर लेंगे। यहाँ पे नहीं, v1 है, इधर से हम v2 को सेपरेट आउट कर लेंगे। v2 इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन दिस, आपने जो भी मार्क किया इस इक्वेशन को 5th या 6th मार्क कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2। v2 की जगह क्या डालोगे आप, u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1। ध्यान देने की जरूरत है इस डेरिवेशन में बहुत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम वेलोसिटीज हैं वो एक तरफ कर लेंगे। पहले हम u1 वाली कर लेते हैं। m1 u1 इधर है हमारे पास माइनस m2 u1। फिर हम u2 वाली सेपरेट कर लेते हैं। m2 u2 इधर u2 वाला है कोई प्लस m2 u2, ठीक है। आ गया हमारे पास 2 m2 u2 आ गए, और इधर हमारे पास क्या बचा, अब m1 v1 ये परे चला गया, ये भी परे चला गया। इधर क्या बचा, m2 v1। v1 वाले एक तरफ बच गए, तो इधर से क्या है हमारे पास m1 माइनस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2, दोनों को ऐड किया ना। इधर हमारे पास क्या बचा, m1 प्लस m2 v1, ठीक है। हमें v1 चाहिए ना यहाँ से, तो हम इसे सेपरेट आउट कर लेते हैं। v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 u2 अपॉन, ये जो इधर था डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा। ये आ गई आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी निकालनी हो आफ्टर कोलिजन, तो आप यही इक्वेशन यूज करोगे। कैसे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन क्या होगी आपके पास, v2। अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और इससे हम v1 सेपरेट कर लेंगे। सो हियर v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, v1 माइनस में तो इधर प्लस में आएगा, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, यहाँ इधर माइनस में है v1, अगर ये इधर आ जाता है प्लस में तो ये क्या आ जाएगा, v2 माइनस u1 प्लस u2, ठीक है। सिंबल्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में ही रखेंगे इसे भी। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम पुटिंग इन इक्वेशन 1। सो पुटिंग इन इक्वेशन 1, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v2 माइनस u1 प्लस u2 प्लस m2 v2, ठीक है। सो हियर वी हैव m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v2 माइनस m1 u1 प्लस m1 u2 प्लस m2 v2, ओके। सेम वेलोसिटीज वाले एक तरफ, अगेन m1 u1 प्लस m1 u1 ये वाला
m2 u2 वाला कौन सा है, माइनस m1 u2 इक्वल्स टू m1 v2 प्लस m2 v2, ठीक है। तो here we have twice of m1 u1 plus m2 minus m1 u2 equals to m1 plus m2 v2। v2 को सेपरेट कर लेंगे, v2 equals to twice of m1 u1 plus m2 minus m1 into u2 upon m1 plus m2। तो ये आ गया आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज फाइंड आउट कर ली आफ्टर कोलिजन। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस है। सपोज दैट इफ मासेस, स्पेशल केसेस, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे इक्वल मासेस के होंगे, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, ठीक है। तो हमारे पास v1 कैसे आएगा, यहाँ पे v1 हमारे पास वेलोसिटी क्या है, जो हमारे पास v1 वेलोसिटी की इक्वेशन है, हम उसमें क्या करेंगे, m1 m2 की जगह डायरेक्ट m पुट कर देंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, m माइनस m इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन में क्या था m1 प्लस m2, तो क्या आ जाएगा m प्लस m, दैट इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगी पूरी क्वांटिटी, m माइनस m इक्वल्स टू जीरो, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m, सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ m अपॉन ट्वाइस ऑफ m, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे m के साथ क्या था u2, तो u2, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, so v1 will be equal to u2, that is final velocity of object A is equal to initial velocity of object B। अगर हम v2 में पुट करें तो v2 equals to twice of m u1 प्लस ये भी जीरो हो गया, m माइनस m जीरो, ठीक है। नीचे क्या आ गया आपके पास 2m अगेन, तो इट विल बी इक्वल टू u1। सो सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट्स इक्वल मासेस के हुए तो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स, दैट इज जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा, सेम बात है, ठीक है। अब जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए है वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका अगर आपके इक्वल मासेस हैं, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। अब नेक्स्ट स्पेशल केस है आपके पास व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। अगर आपकी जो बॉडी बी है वो रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है वो इनिशियली, तो u2 क्या हो गया आपके पास, जीरो, ठीक है। तो v1 क्या आ जाएगा आपके पास, v1 इक्वल्स टू, आपको बस उन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करनी है और आपको वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है, सिंपल, आप ये खुद भी कर सकते हो, ठीक है। m1 प्लस m2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देख लीजिए यहाँ पे m1 माइनस m2 अपॉन u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m2, सिंपल, ठीक है। और v2 क्या आ जाएगा आपके पास, v2 इक्वल्स टू, u1 जीरो है ना, u2 जीरो है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, सिंपल। अब आपके पास इसी के अंडर व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट आपके पास दो केसेस हैं, 3 केसेस हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बिकॉज इट विल बी टू लेंथी फॉर टुडे। सो आज हमने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन करा, उसमें हमने पहले तो जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है और मोमेंटम कंजर्व्ड है उसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल आफ्टर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद हमने उन्हीं रिलेटिव वेलोसिटीज को यूज करके हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी फाइंड आउट करी।
उसके बाद हमने दो स्पेशल केसेस करे, जिसमें हमने फर्स्ट में कंसीडर करा कि both the bodies are of equal masses, that is m1 equals to m2 equals to m, and in next case we consider that the target body, that is body B was initially at rest. So हमने उस केस के अंदर भी जो वेलोसिटीज v1 एंड v2 हैं वो फाइंड आउट करी. सो ये था आपका आज का. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारी जब अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा है और दूसरे का एज कंपेरेबल बहुत कम है, तो बॉडी की वेलोसिटीज क्या आएगी वो हम फाइंड आउट करेंगे. सो थैंक यू. दिस इज ऑल फॉर टुडे.